Hello and welcome everyone. This is Reina Robin Verma. I am an educator at All About Learning and I welcome you all in today's video lecture, and we're going to talk about somebody's heart. किसी के दिल के बारे में बात करेंगे. किसके दिल के बारे में बात करेंगे आज? हम बात करेंगे सेंटेंस के दिल के बारे में, यानी कि heart of the sentence. Those are called verbs. So we're going to learn about verbs in this video lecture, and so without wasting any time, let's just get started. So what are verbs? A verb is a word or a group of words जिसे हम phrase भी बोलते हैं, that is used to describe an action, state or occurrence. A group of words जिसे हम phrase भी बोलते हैं, phrase we'll use phrase. A verb is a word or a phrase that is used to describe or express an action. Action physical action भी हो सकता है और mental action भी हो सकता है. कोई state यानी कि कोई condition, कोई scenario में है, उसको भी हम उस वर्ड को जो ये स्टेट या कोई एक्शन या कंडीशन जो एक्सप्रेस कर रहा है जो वर्ड, उसे भी हम वर्ब कहेंगे. या कोई अकरेंस हो रही है, कोई हैपनिंग हो रही है, उसे भी हम क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे. तो हमारा जो वर्ब है वो क्या एक्सप्रेस करता है? कोई एक्शन एक्सप्रेस करता है, कोई स्टेट एक्सप्रेस करता है, कोई अकरेंस एक्सप्रेस करता है. तो दोज वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. और द फ्रेजेस, a word or a phrase which expresses an action, state or occurrence, those are called verbs. Fine. Now let's move further. We eat rice. अब eat क्या हो रहा है? यहाँ पे एक action हो रहा है, कोई this is an action, so this is a verb. He goes to school. Goes क्या हो रहा है? ये एक action हो रहा है, तो this is a verb. Okay. Now I would like to add, जैसे कि मैंने बोला कि today we are talking about heart of the sentence, यानी कि verb. So इसका जो फंक्शन है, इट इज ऑल्सो लाइक अ हार्ट ऑफ द बॉडी. जैसे हमारी बॉडी में अगर हार्ट फंक्शन करना बंद कर दे तो हम उसे, उस बॉडी को लिविंग बीइंग नहीं बोलेंगे, वो लिविंग नहीं होता है. इन द सेम वे अगर वर्ब जो है किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो वी विल नॉट कंसिडर इट एज अ सेंटेंस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वर्ब इन द सेंटेंस for that sentence to qualify as a sentence. Okay, so verb is that essential for the sentence. It's a very essential part of the it's a very essential part of speech. Okay, so now we'll do types of verb. सबसे पहले है हमारा finite verb, non-finite verb, action verb, auxiliary verbs and linking verb. In this video lecture we're going to cover all these type of verbs. Firstly, let's see finite and non-finite verbs. What are they? Finite verbs change their forms with the number and person of the subject and also tense. अब हम जल्दी से quickly we'll understand that what are finite verbs. जो finite verb है, हर verb का है ना एक base form होता है, ठीक है. अब base form जो है, जो finite verbs होती हैं, first of all ये main verbs होती हैं, ठीक है, जो main verbs होती हैं. अब finite verbs जो है वो अपना जो base form है वो चेंज करती रहती है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट. यानी कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये उसके अकॉर्डिंग अपना बेस फॉर्म चेंज कर देती हैं. वो पर्सन, वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग अपना बेस फॉर्म चेंज कर देते हैं. एंड टेंस के अकॉर्डिंग भी अपना बेस फॉर्म चेंज करते हैं. यानी कि वो पास्ट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है. इन सारे चीज़ों के बेसिस पे वर्ब जो है अपना बेस फॉर्म चेंज करती है. वो वाली वर्ब्स होती हैं फिनाइट वर्ब, और यही वर्ब्स जो होती हैं उन्हें हम मेन वर्ब्स भी बोलते हैं. ठीक है, मेन वर्ब्स आर कॉल्ड फिनाइट वर्ब्स. ठीक है, आई थिंक दिस मच इज क्लियर. Now what are non-finite verbs? ठीक है, non-finite verbs do not change their forms with the number and person of the subject and also tense. अब again जो finite verbs थी वो अपना base form change करती थी, but जो non-finite verb है वो अपना base form change नहीं करती हैं. ठीक है, finite verb बहुत flexible होती हैं और non-finite verb बहुत rigid होती हैं. ठीक है, कि they do not change their forms on the basis of number of the subject, person of the subject and tense of the subject. अब हमारे पास तीन टाइप की नॉन फिनाइट वर्ब्स होती हैं, इन्फिनेटिव्स, जेरेंड एंड पार्टिसिपल. तीन टाइप्स की नॉन फिनाइट वर्ब जो कि अपना बेस फॉर्म चेंज नहीं करती हैं, वो है इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल. लेट्स सी देम ऑल्सो.
पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, आई लाइक रीडिंग, ठीक है, ही लाइक्स रीडिंग, ही लाइक्ड रीडिंग। अब इन तीन सेंटेंसेस में कौन से क्या चेंजेस आप देख रहे हो? अब ये लाइक, लाइक्स, लाइक्ड, ये हमारा तीनों सेंटेंस में चेंज हो रहा है, ठीक है। इट इज चेंजिंग, जो लाइक, लाइक्स, लाइक्ड, यानी कि ये तीन यानी कि क्या है, इसने अपना क्या किया है, बेस फॉर्म चेंज किया है, तो ये क्या है, फिनाइट वर्ब है, ठीक है। अब हम एक और वर्ब देखते हैं, रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग। इन तीनों सेंटेंस में इसने अपना फॉर्म चेंज नहीं किया, सो ये क्या है, नॉन फिनाइट वर्ब है। सिंपल, जो अपना बेस फॉर्म चेंज कर रहा है वो फिनाइट वर्ब है, और जो बेस फॉर्म चेंज नहीं कर रहा है वो नॉन फिनाइट वर्ब है। लाइक, लाइक्स और लाइक ने अपना जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट के पर्सन और सब्जेक्ट के टेंस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज किया है। बट रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग ने अपना सब्जेक्ट के टेंस, सब्जेक्ट के पर्सन, सब्जेक्ट के उसके नंबर के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज नहीं किया है। तो सिंपल रखते हैं, फिनाइट जो बेस फॉर्म चेंज कर लेते हैं, नॉन फिनाइट जो बेस फॉर्म चेंज नहीं करते हैं। Look at the above sentences. We can easily see that in every sentence the verb like is changing its form according to the changing subject. So it's a finite verb. If we look at the another verb reading, we can easily see that the verb is unchanged. So it's a non-finite verb. Simple. Let's move further. Now, what are types of non-finite verb? ठीक है, infinitive, gerund and participle. These are three types of non-finite verbs. Non-finite verb जो unchanged रहते हैं, base form change नहीं करते हैं, उनके कितने, उसके कितने पार्ट्स, टाइप्स होते हैं, infinitive, gerund and participle, three types. Now, let's see infinitive. ठीक है, infinitive verb is a non-finite verb that is formed by adding to before the base form of a verb. अब हम जो नॉन फिनाइट वर्ब्स थे, हमें पता चल गया उनका क्वालिटी क्या है, कि वो बेस फॉर्म चेंज नहीं करते। अब उनका जो एक टाइप होता है इन्फिनेटिव, उसमें उसका क्वालिटी क्या होता है, उसका क्वालिटी होता है कि उसके वर्ब के आगे टू लगा होता है, preposition to. We use preposition to before the verb, infinitive. He likes to play piano. They want to go home. People gathered here to hear the news. ठीक है, to लगा होता है इनके आगे, ठीक है। तो these are infinitives. In the above three sentences, preposition to is used before the main verb play, go, hear. अब main verb यानी कि क्या होती है, मेन वर्ब एक्शन वर्ब्स होती है, ठीक है। we'll see it further, ठीक है। अब हम पहले इतना समझते हैं, अदरवाइज इट विल गेट कंफ्यूजिंग। इन्फिनेटिव, हमारे इन्फिनेटिव्स के आगे preposition to लगा होता है वर्ब के आगे, ओके। लेट्स सी gerund, ठीक है। when ing with the main verb works as the noun, it is called gerund. A gerund works as a subject or an object of a verb. पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा gerund है, gerund यानी कि नॉन फिनाइट वर्ब है, नॉन फिनाइट वर्ब का टाइप है gerund, वो क्या करता है, या तो एज अ सब्जेक्ट काम करता है या तो एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है सेंटेंस में, ठीक है। सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट में ing लगा होता है तो हम उसको बोलते हैं gerund. I saw him playing. प्लेइंग इज अ वर्ब, मतलब कुछ एक्शन हो रहा है, प्लेइंग इज अ वर्ब। अब इस वर्ब में, इस मेन वर्ब में ing लगा हुआ है एंड इट इज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो ये gerund है। स्विमिंग इज द हेल्दी हैबिट। स्विमिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्शन, किस एक्शन की बात हो रही है, और स्विम क्या है, हमारा मेन वर्ब है और इसमें लगा हुआ है ing और ये वर्क कर रहा है एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो इट्स अ gerund. प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज। प्ले यहाँ पे क्या है, प्ले यहाँ पे मेन वर्ब है एंड इट इज द सब्जेक्ट ऑल्सो, और इसमें क्या लगा हुआ है, ing लगा हुआ है, तो इट्स अ gerund. आई होप इट इज क्लियर।
Okay, let's move further and see what participle are. This is the third type of non-finite verbs. Non-finite verb, again and again I am repeating, these are the verbs which does not change the base form when they are used. So participle is the third type. When a verb works as an adjective, it's in participle. So जब भी कोई वर्ब है वो एज एन एडजेक्टिव यानी कि हमारे जो नाउन या प्रोनाउन है उसको इन्हांस करती है या उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन कर देती है या फिर हम उसको ये भी कह सकते हैं क्वालिफाई करती है, देन इट इज एन एडजेक्टिव. ठीक है, तो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करती है, इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, देन इट इज अ पार्टिसिपल एंड अगेन इट इज नॉट चेंजिंग द बेस फॉर्म. देयर इज अ ब्रोकन प्लेट. सो ये क्या कर रहा है, प्लेट को ब्रोकन क्या कर रहा है, प्लेट को और ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है हमारे प्लेट के बारे में, बट इट इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ वर्ब. ऑल्सो इट इज अ वर्ब बट it is behaving like an adjective, then it is a participle. Don't jump into the running bus. Running over here, it working as an adjective, it is behaving like an adjective, but it is a verb. It is a verb. So this is what is participle, and it is a non-finite, it is a type of non-finite verb. Okay, next we see what are action verb. It is a type of finite verbs. Okay, finite verbs वो होते हैं जो कि अपना बेस फॉर्म चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन, नंबर एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, अब हमने ये ऑलरेडी we have already covered this in the earlier, but now we will see what action verbs are. These are the first type of finite verbs. Action verb expresses action, they complete the sentence and describe the subject's action. Subject action, action physical भी हो सकता है, mental भी हो सकता है. So it describes any word which describes the mental or the physical action are called action verbs, right? I'll do my homework. She wants a letter. These are the actions. There are some actions going on, some mental action, physical action going on. So these are the examples of action verb. Now let's see what are the types of action verbs. Now there are subcategory in the action verb, transitive verb and intransitive verb. First of all, we'll see what is transitive verb. Transitive verb is an action verb that requires one or more object which receives the action of the verb in the sentence. जब हम अब सिंपल सा समझ लेते हैं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो उनको उस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट, एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, एंड तो दैट दोज वर्ब्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. जब भी हम किसी सेंटेंस में एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, देन दोज वर्ब्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स. ओके, नेक्स्ट इज इनट्रांजिटिव वर्ब. इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, जो एक्शन रिसीव करने के लिए देयर इज नो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट in the sentence. There is no direct object. Maybe it might happen that there are indirect objects, but we'll not go into that. But there is no object, no direct object to receive the action of the subject in the sentence. Then those are called intransitive verb. Transitive verb में action receive करने के लिए object होता है. Intransitive verb में indirect action, so direct action receive डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है कोई भी एक्शन रिसीव करने के लिए. सिंपल. देन वी हैव ऑक्सिलरी वर्ब्स. इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स का नाम से ही हम देख सकते हैं कि दीज आर मेंट टू हेल्प. तो हेल्प अब ये किसकी करेंगी, मेन वर्ब की करती हैं. ठीक है, दे हेल्प द मेन वर्ब टू give an additional information or additional information about the subject. ठीक है, और ये simple, we'll keep it very simple that जो helping verbs या auxiliary verbs होती हैं ये main verb के साथ काम करती हैं, main verb के साथ रहती हैं, main verb की help करती हैं to get the more information about the subject. Okay, we will these are types of auxiliary verbs, that means helping verb. Primary auxiliaries होती हैं और modal auxiliaries होती हैं. This you can read it by your own or you can take the screenshot of that.
Next we have linking verb. Linking verb connects the subject to a word that provides additional information about the subject. अब linking verb क्या होती है? Linking verb होती है अब additional information about the subject, सब इसको हम बोलते हैं subject complement. ठीक है, जो जो word complement, जो वर्ड सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं उन्हें हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करती हैं लिंकिंग वर्ब्स. ठीक है, दे कैन बिहेव बोथ आइदर मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी कि जो लिंकिंग वर्ब है कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी बिहेव करती हैं. दे टेक द प्लेस ऑफ द मेन वर्ब इफ द मेन वर्ब इज एब्सेंट इन द सेंटेंस. दे टेक द फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी बिहेव करती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, दे बिहेव लाइक अ मेन वर्ब. Okay, normally be verbs are used as the main verb in a sentence. Is, were, are, these all are linking verbs. These sometimes they also behave like a helping verb, they sometimes behave like a linking verb, so don't get confused in that. So here we came to an end of this video session, and I hope you liked it and you have got a very good insight about what are verbs. I take your leave with the promise that I will be bringing more and more video lessons or video lectures on the other topics of grammar, English grammar. So on this note, I'll take your leave and I'll see you in the next session.